And we're staying with the live pictures as Sachin Pilot is expected to put out a statement any time now. And remember, as we are standing by for that, Republic gets you the biggest news break of how Priyanka Gandhi Vadra dialed Sachin Pilot and she has spoken to him. Will that mean any change in his position? Remember, he's not made any statement until now, but the allegations he's making against the Gehlot government for the very reason that he's staging this protest is inaction against corruption during the BJP rule by the Gehlot government. And you see those cameras positioning themselves to get the first statement from Sachin Pilot, who is observing a day-long fast. हट जाओ क्राउड आ गया एकदम से गाड़ी नहीं यहीं पे रुको यार चिल्ला रहे हैं पायलट को see that Sachin Pilot's there is a lot of chaos over here and Sachin Pilot is all about to leave this place. The workers have gone and they want to meet their leader. It's a lot of havoc over here as Sachin Pilot is now moving out of the venue. We are inside the venue bringing you a lot of havoc over here as Sachin Pilot is being taken back to his car as there are hundreds of workers over here and they want to meet the leader, take a glimpse of him, and which is why this kind of, you can see the kind of fandom that is on exhibition over here as Sachin Pilot is all about to leave. And these are the exclusive visuals that we're bringing. You can see the kind of support that has poured in for Sachin Pilot over here. He is now leaving the premises and will now go back to his residence in the civil lines area. But this was over 5 hours of protest, where Sachin Pilot remained, and now he is looking at his supporters trying to cheer their leader. And as you can see, Vivek showing you the pictures over here. Just see the pictures. They're all over the place. And we are standing right in front of the convoy of Sachin Pilot. And as the convoy moves, we will try to speak to him. As Sachin Pilot leaves, you can see that he's coming out and he is with folded hands greeting his all supporters over here. And he is thousands of people have poured in just in the glimpse and tendered their support to Sachin Pilot. At there, bringing you live visuals, has come out from the sunroof and waving at the hundreds of supporters who have come here to support Sachin Pilot in his dharna that he had staged against the corruption. This was a protest against corruption. He said that he is doing this to awaken his own Gehlot government to take action against the corruptions that allegedly happened during the Vasundhara Raje period. What needs to be seen here is that how a massive turnout of supporters for Sachin Pilot as he moves out of the
scheduled to stay here till 5, but he's left an hour early. The entire day he did not speak a word or eat anything. He had a vow of silence, and he continues to prove a point that he's not alone, that the support he has is massive. And look at the outpour. The outpour is unrecognizable. It's unprecedented. One would have not even imagined. We've been talking about it since early in the morning, that how Sachin pilots, the way the people will turn out. उसके विरोध में आज एक दिन का मैंने अनशन रखा था और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे, तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था, प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे, तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले देख चुका हूं। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज़्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। जहां तक देश में जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो आज कर्नाटक में सरकार हो, सब लोग जानते हैं कि वो 40% की सरकार है, कमीशन की सरकार है, और हम लगातार उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे बातों को विश्वास कर भाजपा को वहाँ से बाहर, सत्ता के बाहर कर देगी। जहाँ वो शासन कर रहे हैं वहाँ मैं खुद कई मरतबा गया हूँ भाजपा शासित प्रदेशों में, वहाँ जाके हमने अपनी बात को रखा है। और जब चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ भी हम गए हैं, हमने भाजपा के करप्शंस को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया है। और इसी काम को हम लोग राजस्थान में करना चाहते हैं कि जब भाजपा का शासन था तो बहुत करप्शन हुआ था और वसुंधरा जी के जिम्मेदार हैं। उन स्पेसिफिक जो हमने उजागर किए थे मामले, उस पर कार्रवाई हुई नहीं, इसको लेकर आज मैंने अनशन किया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रही है, इस इशू को लेकर आज मैंने अनशन किया। और मैं समझता हूं देश भर में हमारी जो मुहिम है कि करप्शन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें, इसको आज और गति मिलेगी। इस
उद्देश्य को लेकर आज मैंने एक अनशन रखा था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर उसका समर्थन किया, उन सबका मैं आभारी हूँ। पायलट साहब, पार्टी इस अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि बताया गया है। पायलट साहब, राहुल गांधी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को क्या कहेंगे? राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और मैं कहता हूँ ना सिर्फ कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई है। किस मुद्दे पर दिखाई है? करप्शन के मुद्दे पर। आर्थिक जो गड़बड़ियाँ हुई हैं और बड़े पैमाने पर हुई हैं, उनके विरुद्ध पूरा विपक्ष एक हुआ है। और हम करप्शन को लेकर बड़े गंभीर हैं, ये बात हम सब जानते हैं। और उसी करप्शन को इश्यू को लेकर मैंने अपनी बात को रखा था। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से। 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। मैं समझता हूँ करप्शन पर अगर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। करप्शन के खिलाफ पूरा देश है, ना सिर्फ विपक्ष लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस और हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष करते रहे। सचिन, क्यों इसको एंटी पार्टी गतिविधि क्यों बताया है? तो मुझे पार्टी आज सुबह जानकारी मिली है, इस बारे में कांग्रेस लीडरशिप से बात करूंगा। कोशिश की आपको इस इशू पे। ऐसा है, पिछले 20-22 सालों से जब भी मुझे दायित्व दिया गया है, पार्टी की जिम्मेदारियां दी गई हैं, और हमारा मुख्य प्रमुख जो विपक्षी दल है वो भाजपा है, खासकर इस उत्तर भारत में और राजस्थान के अंदर। हर मोर्चे पर जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तब हमने भाजपा को घेरने का पूरा काम किया। हम सत्ता में भी हैं तब भी हम जहां जिम्मेदारी मिलती है भाजपा को एक्सपोज करने का काम करते हैं। और जब करप्शन के इश्यूज जो पब्लिक डोमेन में हैं, ये कोई छुपे हुए नहीं हैं। ये इशू जो खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे, ये कोई नए नहीं हैं। ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किए, ये पब्लिक डोमेन में थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैंने 2 बार पत्र लिखा पिछले 1.25 साल में, और मैंने आज भी ये मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में जो, क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी करी में फर्क नहीं है। क्या भाजपा वाले बोल रहे हैं कि मेरे से उन्होंने बातचीत में कभी ये नहीं कहा कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कोई बात नहीं। रंधावा जी अभी कुछ महीने पहले ही प्रभारी बने हैं। इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो प्रतिलिपियां हैं मैं मार्क करी थी, और हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ये करप्शन का इशू है, और करप्शन के इशू हम अब तमाम बातें मीटिंग में, सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बोलते हैं, और करप्शन के खिलाफ हमें बोलना भी चाहिए। और करप्शन के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो, इसको लेकर आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। पायलट साहब, भाजपा वाले कह रहे हैं प्रियंका जी ने आपसे बात की है, उन्होंने की तरफ है ये। Statement that was finally put out by Sachin Pilot because he was observing a day-long fast till 4 p.m. and on expected lines, as was said, that he had called this dharna because he was alleging inaction by the Gehlot government on corruption during the BJP rule.